friends. Today we will discuss about hot working and cold working. Basically, hot working and cold working, that are the metal forming processes. In previously video we have discussed about the method of surface hardening. We will see carburizing, nitriding, cyaniding, flame hardening and induction hardening. Today we will discuss hot working and cold working. After that, strain hardening, and last one, that is the recovery, recrystallization and grain growth. So we will start what is cold working and hot working. Basically, hot working and cold working, that are the metal forming processes. अब इसमें क्या करते हैं अपन, बेसिकली वी अप्लाई द फोर्स ऑन द रॉ मटेरियल टू इंड्यूस द स्ट्रेसेस. अभी जो स्ट्रेसेस जो रॉ मटेरियल में जो डेवलप होना शुरू होती है, वो जो स्ट्रेसेस है वो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस से कम रहती और अल्टीमेट स्ट्रेस से ज्यादा रहती. इसमें क्या करते हैं, बेसिकली मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस में बिना अपन मटेरियल ऐड भी नहीं करते और रिमूव भी नहीं करते, यू कैन चेंज द शेप ऑफ द वर्क पीस. इसके कारण इसमें वेट दैट बिकम्स अनचेंज रहे. So we will discuss basically the types of the metal forming processes, that is the hot working, cold working, extrusion, forging, rolling, bending and spinning. So we will discuss about hot working. Hot working, the main difference between the hot working and cold working is that hot working is done at a higher temperature while the cold working is done at a room temperature. Here there will be a two roller is there. Here that is the workpiece. The distinguish between hot and cold working does not depends solely on temperature, but rather on the process temperature. When the process temperature of mechanical deformation of steel is above the recrystallization temperature, the process is termed as hot working process. Otherwise, it is termed as cold working. अभी recrystallization temperature क्या रहता है, बेसिकली जो टेम्परेचर पे प्रीवियस जो ग्रेन रहेगा ना, ग्रेन चेंजेस होना शुरू हो जाएगा. जो टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको अपन ने हीट किया, जैसे एक आधा एल्यूमिनियम होगा, तो एल्यूमिनियम का जो टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट जो रहता वो नियर अबाउट 650 रहता. उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो रहता दैट इज 150 डिग्री. यानी 150 डिग्री के ऊपर क्या हो रहा है, बेसिकली उसमें ग्रेन साइज में चेंजेस होना शुरू हो जाए. जहां पे ग्रेन स्ट्रक्चर में चेंजेस होना शुरू होते जो टेम्परेचर से होते, ऐसे टेम्परेचर को अपन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोलते हैं. For hot working process, large deformation can be successively repeated as the material remains soft and ductile. The hardness of the material cannot be controlled after hot rolling, and it is the function of chemical composition and the rate of cooling after rolling. The hardness obtained by hot rolling is less comparatively than obtained by cold rolling. However, most material will experience some surface oxidation, result in the material loss and poor surface finish. जैसे अपन ने surface finish की यदि बात करेंगे, तो यहाँ पे इन केस ऑफ हॉट वर्किंग में अपने को सरफेस फिनिश जो मिलेगा दैट विल बी पुअर एज कंपेयर्ड टू कोल्ड वर्किंग. यानी कोल्ड वर्किंग में वहाँ पे अपने को डायमेंशनल एक्यूरेसी मोर मिलेगी एज कंपेयर टू हॉट वर्किंग, और उसके बाद में मटेरियल फिनिश जो मिलेगा दैट विल बी गुड एज कंपेयर टू हॉट वर्किंग. कोल्ड वर्किंग में जो मिलेगा दैट विल बी गुड एज कंपेयर टू हॉट वर्किंग. Hence, there will no increase in either yield strength or hardness. In addition, yield strength will decrease with increase in a temperature and the ductility will improve. When a workpiece is hot work, the
atoms of workpiece reach a certain higher energy level due to a heat and force. As a result, new crystals start formation. This is called recrystallization. These crystals are strain free. एडवांटेजेस पॉइंट ऑफ व्यू यदि देखेंगे तो हियर दैट इज द हाई डक्टिलिटी, यानी बेसिकली अपन ने देखा कि ग्रेन स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, यू विल गेट द हाई डक्टिलिटी and more deformation without cracking. Low flow stress, less mechanical energy required for deformation. Porous seal up, small grain size, stronger, tough and more ductile compared to cast iron. Metals that usually fracture in cold working can be hot work. सम डिसएडवांटेजेस, जैसे अपन ने देखा कि अपन हॉट वर्किंग में क्या करते बेसिकली, अपने को मेटल को जो है वो यदि फर्नेस में डाला अपन ने हीट कर देते, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाता बेसिकली, वहां पे एटमॉस्फेयर यानी फर्नेस के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट की वजह से बेसिकली वहां पे ऑक्सीडेशन दैट विल टेक्स प्लेस। यानी यहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते कि सरफेस रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड द फर्नेस एटमॉस्फेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली ऑक्सीडेशन के चांसेस है। हॉट शॉर्टनेस व्हेन द वर्किंग टेम्परेचर एक्सीड्स द मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट दैट इज द डायमेंशनल टॉलरेंस इज पुअर ड्यू टू द थर्मल एक्सपांशन एट हायर टेम्परेचर। अब इसमें हैंडलिंग जो रहेगा बेसिकली, हैंडलिंग इज ऑल्सो डिफिकल्ट, यानी फर्नेस से अपने को मशीन के ऊपर उठा के रखना पड़ेगा, तो इसके कारण बेसिकली अपन ऐसा बोल सकते हैं हियर दैट इज द हैंडलिंग दैट इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट इज द कोल्ड वर्किंग। इन अ कोल्ड वर्किंग अभी अपन मेटल को अपन शेप देते बेसिकली बाय अप्लाइंग प्रेशर एट अ टेम्परेचर। इसमें जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो रहेगा दैट विल बी बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। We have already seen in the case of hot working अपने को वहां पे जो temperature जो रहता that is the above the recrystallization temperature, and in case of cold working here that is the below the recrystallization temperature of the metal. In most cases it is done at a room temperature also. Cold working is done to achieve the closer dimensional and accuracies and to improve the mechanical property. It is often done after hot working to obtain the better dimensional control. यानी यहाँ पे अपन ने यदि accuracy की बात की तो accuracy you will get the more accuracy in the case of the cold working. At surface finish जो मिलेगा अपने को that will be better as compared to hot working. Next, if the material is cold work to a point near the breaking point, further deformation may becomes important due to cold working. This is rectified by making the material go through a process annealing operation which returns the material to its original state. Cold working involves large force and heavier equipment compared to hot working, but less to much better dimensional accuracy and finish. We have already discussed here you will get the better accuracy and surface finish. Advantages point of view again, that is the better dimensional control. Then hot working possible because the reduction in size is not much. Strength and hardness of metal increase. Easier handling, जैसे अपन ने देखा कि इसमें अपने को क्या करना पड़ता कोल्ड वर्किंग में, जैसे अपन ने देखा कि हॉट वर्किंग में अपने को क्या करना पड़ता फर्नेस से उठा के अपने को मशीन के ऊपर रखना पड़ेगा, यानी वहां पे बेसिकली हैंडलिंग दैट बिकम्स डिफिकल्ट। यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट, कंटेमिनेशन प्रॉब्लम आर मिनिमाइज, यानी कोई भी किसके साथ में मिक्स नहीं होगा बेसिकली, तो हियर द कंटेमिनेशन प्रॉब्लम दैट विल बी मिनिमाइज। नो हीटिंग ऑफ वर्क रिक्वायर्ड। सम डिसएडवांटेजेस, हायर फोर्स आर अप्लाइड टू initiate and complete the deformation. Heavier, more powerful and stronger equipment are required. यानी यहाँ पे यदि देखेंगे तो equipment point of view यदि रखेंगे तो more powerful and stronger equipment are required in case of cold working. Ductility and strain hardening. Ductility and strain hardening limits the
amount of forming that can be done, undesirable rescheduled stresses may be produced. डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू यदि देखेंगे तो नंबर ऑफ टाइम दैट डिफरेंस दैट विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, दैट इज हॉट एंड कोल्ड वर्किंग. वी हैव ऑलरेडी सीन हॉट वर्किंग, दैट इज द अबाउ द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, और कोल्ड वर्किंग जो करते हैं अपन दैट इज द बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. इन केस ऑफ हॉट वर्किंग, फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रिस्टल, यहाँ पे नो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल. सरफेस फिनिश की यदि बात की जाए तो सरफेस फिनिश जो मिलेगा अपने को, गुड सरफेस फिनिश अपने को कोल्ड वर्किंग में मिलेगा. इन केस ऑफ हॉट वर्किंग यदि देखेंगे तो सरफेस फिनिश इज नॉट सो गुड. नो रीशेड्यूल स्ट्रेसेस इन केस ऑफ हॉट वर्किंग, फॉर्मेशन ऑफ रीशेड्यूल स्ट्रेसेस इन केस ऑफ कोल्ड वर्किंग. फोर्स की यदि बात की जाए, हॉट वर्किंग में वी विल रिक्वायर अ लेस फोर्स. इन केस ऑफ कोल्ड वर्किंग यू हैव रिक्वायर्ड मोर फोर्स एज कंपेयर टू हॉट वर्किंग. Next, that is the work hardening and strength hardening. So we will discuss work hardening and strength hardening. अभी वर्क हार्डनिंग और स्ट्रेंथ हार्डनिंग बेसिकली किसको बोलते हैं? व्हेन वी अप्लाई अ टेंसाइल लोड टू अ बॉडी. अभी आपने लोड अप्लाई किया एक आधा ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके कारण क्या हो जाएगा बेसिकली, वो बॉडी देन इट विल प्लास्टिकली डिफॉर्म. देन द बॉडी विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. जैसे ही आपने वो लोड निकाल लिया तो इट विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बट इट विल नॉट कम बिकॉज ऑफ प्लास्टिसिटी. यानी उसमें बेसिकली क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण क्या हो जाएगा, इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. अब इसमें क्या हो जाएगा बेसिकली, देन द इंटरनल फोर्स विल बी सेटअप इन द बॉडी. अब जो इंटरनल फोर्सेस जो सेटअप हो जाएंगे काय में, वो ऑब्जेक्ट में, जो इंटरनल फोर्सेस दैट विल बी सेटअप इन द ऑब्जेक्ट विच विल गिव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द बॉडी. ऐसे इसको अपन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क हार्डनिंग और स्ट्रेंथ हार्डनिंग. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ. अभी अपन ने रिक्रिस्टलाइजेशन यदि देखना होगा तो सबसे पहले अपन एक देखेंगे, एक रॉड है, सपोज एक रॉड है, उसके ऊपर अपन ने कुछ स्ट्रेस यानी कोई भी एक टेंसाइल स्ट्रेस अपन ने अप्लाई किया. तो ऑब्वियसली टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करने के कारण क्या हो जाएंगे, उसकी लेंथ दैट विल गेट इंक्रीज. उसकी जो लेंथ जो है वो लेंथ क्या हो जाएगी, बेसिकली बढ़ जाएगी. इसकी जो लेंथ है ये लेंथ बढ़ जाएगी. इफ यू रिलीज दैट टेंसाइल फोर्स आफ्टर अनलोडिंग, क्या हो जाएगा बेसिकली, इसकी लेंथ तो बढ़ जाएंगी मगर इसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस जो है वो इंटरनल स्ट्रेसेस दैट विल बी डेवलप एंड मेनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. ठीक है, तो बेसिकली इसके कारण क्या हो जाएगा, इसकी हार्डनेस, इसकी डक्टिलिटी के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा बेसिकली. तो इसके लिए अपने को रिकवरी बोलो, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ की जरूरत है. तो अब देखेंगे अपन व्हाट इज रिकवरी. बेसिकली रिकवरी, इफ रिकवरी it is a low temperature phenomena which result in the restoration of physical property. जैसे आपने एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को आपने हीट किया अप टू सर्टेन टेम्परेचर, इसके कारण क्या हो जाएगा बेसिकली, अप टू लो टेम्परेचर फिनोमिना विच रिजल्ट इन रिस्टोरेशन ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी. अब इसका क्या हो जाएगा बेसिकली, इसका इफेक्ट हार्डनेस के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा बट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दैट विल डिक्रीज रैपिडली. और इसके कारण क्या हो जाएंगे, उसमें जो इंटरनल स्ट्रेसेस जो हो जाएंगी दैट विल बी रिलीव, दैट इज नोन एज द रिकवरी. नेक्स्ट दैट इज द रिक्रिस्टलाइजेशन. जैसे अपन ने देखा रिक्रिस्टलाइजेशन में बेसिकली क्या हो जाएगा कि ग्रेन जो है, ग्रेन साइज जो है यानी ग्रेन बाउंड्रीज जो है दैट विल बी चेंज, डैमिनिश हो जाएंगे पहली ग्रेन बाउंड्री और न्यू ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा बेसिकली. ठीक है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऐसे बोलते हैं कि डिस्टॉर्टेड ग्रेन्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू ग्रेन, यानी ये जो कुछ भी पुराने जो ग्रेन होंगे दैट विल बी रिप्लेस बाय न्यू ग्रेन. कंटेंट 3 प्रोसेसेस, न्यूक्लिएशन, प्राइमरी ग्रेन ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रेन ग्रोथ.
on which the temperature this process is carry out is called recrystallization temperature. यानी ये जो प्रोसेस के ऊपर ग्रेन बाउंड्रीज जो चेंज हो रहे बेसिकली उसको बोलते हैं अपन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ये न्यूक्लिएशन है, उसके बाद में ये जो देख रहे हैं आप इसके अंदर दैट इज द प्राइमरी ग्रेन ग्रोथ, और कुछ सर्टेन टेम्परेचर के हीट करने के बाद में ये जो प्राइमरी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ये सेकेंडरी ग्रेन में ये कन्वर्ट होगा. ठीक है, जो टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट हो रहा दैट इज नोन एज रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. दैट इज द ग्रेन ग्रोथ. अभी ग्रेन ग्रोथ क्या करते हैं बेसिकली अपन ने देखा, रिकवरी देखा, रिक्रिस्टलाइजेशन देखा. नेक्स्ट वन दैट इज द ग्रेन ग्रोथ. अभी ग्रेन ग्रोथ में क्या होता है बेसिकली इंक्रीज इन अ ग्रेन साइज विल टेक्स प्लेस. अभी ग्रेन साइज यदि बढ़ गई तो इसके कारण क्या हो जाएगा, हार्डनेस जो हो जाएगा दैट विल बी डिक्रीज इन हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज इन डक्टिलिटी. यानी इसके कारण क्या हो जाएगा बेसिकली इसकी डक्टिलिटी जो है वो डक्टिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट विल बी इंक्रीज.